بیرون ملک جا کے اپنا چیک اپ کروائے، اس ملک اور قوم کو پانی اور مچھر نہیں ماریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ اور آپ طویل دیکھتے بھی ہیں پاکستان کی سیاست کو بھی اور اداکار ہیں، آپ بھی اس ملک کا حصہ ہیں۔ اچھا آقا صاحب، میں یہ کہوں گا کہ سندھ کو جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ڈبویا گیا ہے جی، کیونکہ یہ برساتیں ہماری عمر میں بہت ساری آئی ہیں، اس سے بھی زیادہ آئی ہیں، لیکن یہ جو ایل بی او ڈی ہے یہ ایک پنجاب سے جو انہوں نے چھوڑے ہیں اپنے فیکٹریوں کے گندے پانی، اور سندھ کے لوگوں نے ان کو پیسہ سمجھ کر اپنے زمینوں سے، حالانکہ ان کا اخراج جو ہے یہ جانا تھا سمندر میں، لیکن ان لوگوں نے وہ آگے کے بالکل راستے بندے وہاں تک یہ پہنچے نہیں ہے۔ اب وہ ایل بی ڈو کے جو یہ نالے ہیں یہ بالکل ریورس جو ہے چل پڑے، یہ کبھی اس میں دبائی ہے۔ اچھا دوسری بات میں یہ کہوں گا اس ملک کی سیاست پہ جی، کہ اب یہاں پہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، کوئی محترمہ بے نظیر نہیں ہے۔ اب یہاں کی سیاست میں ہر ایک جو ہے، خاص طور پہ میں خواتین کی جو ایک یلغار دیکھ رہا ہوں، وہ سب بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں، جس میں کبھی دیکھو تو شرمیلا فاروقی ہے، کبھی دیکھو تو شیلا رضا ہے، کبھی دیکھو تو شازیہ مری ہے، وہاب ہے، سے جو ہمارے آ جاتے ہیں رحمان ملک ہے، بابر۔ تو سندھ کے جو اصل جو ممبر ہیں، جو سچائی والے لوگ ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اب یہ جو آپ چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سندھ کے کسی بھی نقصان کا، تو یہ صرف لوگ پیسے کھانے کے چکروں میں ہیں۔ پر بات سنیں چانڈیو صاحب، میں بھی چانڈیو صاحب بات میری سن لیں جی، کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے سوائے سندھیوں کے سندھ کے ساتھ کوئی سنسر نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم ہے، نہ اے ایل پی ہے، نہ کوئی اور ہے۔ پنجابی پارٹی تو پہلے سے ہی وہ بالکل دور ہے۔ تو سندھ کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ، آپ دیکھیں کہ 8 ضلع تو کمپلیٹلی ڈوب چکے ہیں۔ جی، میں چانڈیو صاحب آپ سے یہ عرض کر رہا تھا چانڈیو صاحب کہ جن کے آپ نے نام لیے، جتنے بھی فوزیہ وہاب اور سب لوگوں کا آپ نے نام لیا، یہ الیکٹڈ لوگ تو نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے اس وقت پارٹی نے ہی بٹھایا ہے ان سیٹوں پہ، تو کیسے پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ لوگ کہاں جائیں جو اس وقت جو متاثرین سیلاب ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کو چھوڑ کے کوئی نئے چہرے لے کر آئے سندھ میں، جو کہ سندھ کے مفادات، سندھ کے جو وسائل ہیں ان کو میں ایک دو چیزیں ہیں میں یہ کہوں گا آج آپ کے اس چینل کے توسط سے، کہ پیر صاحب پاگارا کا یہ ٹائم ہے کہ ان کی پارٹی اور ہم جیسے ان کے ورکر اٹھ کے کھڑے ہوں۔ دوسرا غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب ہیں جن کو سندھ سے تھوڑی بہت محبت ہے۔ چانڈیو صاحب اب آپ کو لوگ جو دیکھ رہے ہیں، نوجوان جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بالخصوص سندھ کے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیسے متحد ہوں اور سیلاب کے لوگوں کے لیے کیا مدد کریں گے؟ دیکھیں، ہم آرٹسٹ جو ہے سندھ کے جو بھی نوجوان ہیں یا سندھ یہ نیشنلسٹ ہیں، یہ اٹھ کے کھڑے ہوں، یا یہ پارٹیاں جو میں نے آپ کو دو بتائی سندھ میں، صرف اب ان کو تھوڑا سا دل میں احساس ہے سندھ کے لیے۔ تو ہم فنکار تو ویسے ہی سندھ کے فنکار ویسے بھی بھوکے ہیں، ہمیں تو کراچی سے دھکیل دیا گیا ہے، نہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، نہ کوئی سب پرستی ہٹ کے اس طرح کے ٹی وی کے ڈرامے جو ہیں اس میں سندھی آرٹسٹ کو نہیں لیا جاتا۔ جی بہت شکریہ گلاب چانڈیو صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جس طرح گلاب چانڈیو ایک پاکستان کے ڈاور اداکار بھی ہیں، وہ بھی یہ فرما رہے تھے نہ تو سندھ کے ساتھ سینسرڈ این پی بھی نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم ہے، نہ پارٹیاں، یہ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں، شرمیلا فاروقی سے لے کے سب کی انہوں نے فہرست گنوا لی کہ وہ لوگ ہیں جو امپورٹ کیے ہوئے پارٹی میں، وہ لوگ اس سندھ کی عوام کا فیصلہ کیا کریں گے، این پی کیا کرے گی؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے جو بات کی اس نے تو یہ ثابت کیا، اس نے خود کہا کہ میرا پھر پگاڑا صاحب کی پارٹی سے میں اس کو ورکر ہوں، جی، اور اس نے یہ پھر سیاست میں بات لے آیا، سیلاب کے اوپر اس نے بات نہیں کی۔ اس نے یہ کہا کہ ہم صرف مخلص ہیں کیونکہ پیپل پارٹی میں جو جن نام انہوں نے لی تو وہ کیا سندھی نہیں ہے بہت سارے، یا اگر ایک زرداری صاحب بیمار ہے اور وہ علاج کے لیے چلا گیا
तो ये पर हुकूमत जिस कौम का खान साहब इधर हाल बुरा हो, लोग भूखे मर रहे हो और वो जो है ना लंदन में जाके इलाज करवाए, चेकअप करवाए। मैं अरज आपको ये करना चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदा बीमार है, प्रेसिडेंट है और वो इलाज के लिए चला भी गया, जी, प्राइम मिनिस्टर हमारे मौजूद साथ भी है है, वकील राव, क्योंकि वो अभी हालिया इसमें बारिशों में और सैलाब की कवरेज करके आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वकील राव साहब सलाम अलैकुम। वकील राव, आप हमें सुन पा रहे हैं सही? और अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इस वक्त आप होके आए हैं सिंध की बिलखुसूस बदीन, ठट्टा, इन तमाम मिट्टी के इलाकों में, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या लोगों की कंडीशन है वहां पे? मोहन साहब, पिछले एक हफ्ते से हमने डिस्ट्रिक्ट सामगढ़, नौशहरा फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडोला यार समेत दीगर जो इजला है वो हमने गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम इन इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहन साहब, तबाही बर्बादी के नाकाबिले यकीन मनाजिर और दास्तानें हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत इन इलाकों में जो है वो अपनी मदद कर रहे हैं। लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। हुकूमत, मकामी इंतजामिया, NGOs इन चीजों की जो है ये देखने में नजर नहीं आ रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद कर रहे हैं। पानी में डूबे हुए हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो गई है। तकरीबन 50 लाख एकड़ से जायद जो अराजी है वो तबाह हो गई है, फसलें बर्बाद हो गई है। लोग इन इलाकों में हमने देखा कि घरों में भी, शहरों के अंदर भी जो है वो 5-5, 6-6 फीट। वकील राव ये बताइएगा, बिल्कुल वकील राव टाइम की कमी है, ये बताइएगा कि आपने वहां पे हुकूमती मशीनरी को काम करते हुए देखा या किसी NGOs को देखा? आप वहां पे मौजूद थे? मोहन साहब, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। इस वक्त मैं मीरपुर खास के इलाके चांदनी चौक पर मौजूद हूँ, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये पूछना चाह रहा था वकील राव, आपसे जानने की कोशिश कर रहा था, आप भी अभी भी वहां पे मौजूद हैं, क्या हुकूमती मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है आपको? शायद हमारा आवाज और राब्ता जो है वकील राव से कट गया। और देखिए वही बात है कि जैसे अभी वकील राव भी वहां पे मीरपुर खास में मौजूद हैं और उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो है लोग बिल्कुल बेहाल मददगार पड़े हुए हैं, तो आप भी हुकूमत के कोलिशन पार्टनर हैं, तो कैसे होगा सर? अब तब भाई मैं एक चीज आपको बता दूं, वकील साहब का या जो भी वहां से बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कहता है, लेकिन अगर आप एक एक डिस्ट्रिक्ट का बात ले, सन में जो इस वक्त एक एक डिस्ट्रिक्ट से जो लोग मतलब ये है कि निकले हुए हैं और रोडों पे और जो ऊंची जगहों पे या कैंपों में, तो लाखों के तादाद पे है। तो हुकूमत अपने तौर पर लगे हुए है, NGOs लगे हुए है, हम पाक आर्मी लगी हुई है, नेवी लगी हुई है, जिसके भी बस में कुछ हो वो कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब लाखों पे लोग हो और वो अचानक एक आपत हो, तो वो जाहिर बात है कि हर किसी को हर जगह पे वो चीज़ नहीं पहुंच सकता है और वो मदद नहीं हो सकते, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि हमें वो घर हो जो अल्लाह ने वो पानी के अंदर लाया, वही जो है ना हमें फैसिलिटीज़ वही चीज़ें है। अब रहा जो वकील साहब ने बात की कि जो फसलें तबाह हुई, ये सारा चीज़ें है, तो ये ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह करे, फिलहाल अल्लाह अपना रहम करे अपने। फिलहाल तो खान साहब उन तक रिलीफ के लिए कुछ तो राशन और कुछ तो चीजें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल अब तब भाई हो रहे हैं, ऐसे ये न हुकूमत सोया हुआ है, क्योंकि सारा मशीनरी उनका ब्रेक पे जाएंगे, यही आके जानने की कोशिश करेंगे क्या हुकूमत हमारी सोई हुई है या हमारे हुक्मरान इस कौम से जो वोट लेके ऐवानों में बैठे होते हैं वो जाग रहे हैं या नहीं। हमें तो जागते हुए कहीं पे नजर नहीं आ रहे, पर MNP के रहनुमा जिस तरह सईद अहमद खान ने दिफा कर रहे हैं हुकूमत का कि हुकूमत को टाइम दिया जाए तो हुकूमत काम करेगी, इस पे आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं।
वापस आने का बहुत शुक्रिया। और बड़े अफसोस से, मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है, आज जो लोग घरों में बैठ के ये देख रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि खुदारा अपनी करीबी कैंप जो लगी हैं इस वक्त शहर कायद में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे आपसे जो भी हो सकता है, राशन हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, इस मुश्किल वक्त में सिंध की कौम और सिंध के अवाम, पाकिस्तान की कौम की मदद करें, क्योंकि आज वो आपके मदद के लिए मुंतज़िर हैं। हुकूमत पे कब तक छोड़ेंगे? हुकूमत पे हम कब तक ये देखते रहेंगे कि हमारे वो हुक्मरान, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारे हुक्मरान आके हमारे इन कौम को मुश्किल से निकालेंगे, क्योंकि वो अपनी ही मुश्किलों में इस वक्त झगड़े हुए हैं, अपनी वजारतें, अपनी हुकूमतें, अपनी इमारतें बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जहाँ पे मुफाहमत की सियासत हो, जहाँ पे लेन देन की सियासत हो, वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौम को याद रखेंगे। खान साहब, जहाँ पे मुफाहमत की सियासत हो, कोलिशन पार्टनर की सियासत हो, आप आके चैनलों पे और आप आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, कौम को कैसे बचाएंगे? देखो आफ्ताब भाई, वो एक दूसरा चैप्टर है कि जो हम एक दूसरे के ऊपर इतराज़ात करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो इस कराची शहर में हम रह रहे हैं और इस शहर में जो हो रहा है लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, जो रक्शे वाले के साथ, जो तंदूर वाले के साथ, जो रेडियो वाले के साथ, जो किसी भी इंसान के साथ, तो वो मतलब ये है कि वो ऐसा बात नहीं है। अगर हम हमारा बस यही चलते है कि हमारा सूबाई सदर टीवी चैनल पे कहते हैं, हमारा दूसरा साथी टीवी चैनल पे कहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को बंद किया जाए, और हमारे सूबाई सदर बार बार चैनलों पर ये कहते हैं, शाही सैयद साहब, कि मुफाहमत और बेगैरत करूंगा। हमारे साथ नाज़रीन टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जाम मदद अली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन से ताल्लुक है, और वो कहाँ मौजूद हैं और उनके शहर की हालत भी जानने की कोशिश है और बिल्कुल सुबह सिंध पे बात करेंगे। जाम साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जान साहब, ये फरमाइएगा कि मैं यही सवाल कर रहा था थोड़ी देर पहले, फातिमा सूर्या भजिया साहबा से भी यही जानने की कोशिश कर रहा था, और मेरे नाजरीन और गुलाब चांडियो एक सिंध के और पाकिस्तान के बड़े अदाकार हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे। इस वक्त सूबा सिंध जो है सैलाब में डूबा हुआ है, पंजाब को डेंगू के मरीज ने जो है तबाह किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आप भी इस वक्त कोलिशन पार्टनर भी कहलवाते हैं हुकूमत के, हुकूमत में भी है मौजूद, मुफाहमत की सियासत एक तरफ, इस वक्त जो है सिंध की कौम जो है बिल्कुल एक निवाले के लिए तरस रही है, क्या कहेंगे आप? हमारे पास ये भारत में नुकसानात की तबाही सही है, इसमें बारिश के साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी बढ़ना है, और इस मतलब जो कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उसमें 1 एकड़ की फसल नहीं बची है, और यहाँ पर हमारा 90% करने का और ये तबाह हो चुका है। तो बेघर हुए हुए, रोडों पे आए हुए, ये हमारे अमालों की सजाएं हैं। हम एक दो के लिए जो मोहब्बतें निकल रही है, एक है, हम लोगों को अपने नजर से भटके हुए हैं, हम लोगों में से अच्छी चीजें निकलती जा रही है। इस वक्त हमें चाहिए कि हम जो लोग हमारे डूबे हुए हैं, बेघर हुए हुए हैं, उनकी मदद करें, उनको घरों के बाहर निकालें और पानी की व्यवस्था। और जाम साहब, मेरा सवाल यही होगा और मेरे नाजरीन का भी सवाल यही होगा कि पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर सिंध भी आए वहां पे, और हमने भी देखा कि वहां पे गए सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब भी गए, वहां पे मियां नवाज शरीफ PMLN के जो है सरबराह है वो भी गए, इमरान खान तहरीक इंसाफ भी गए। क्या महज ये फोटो सेक्शन है? आप जो चीजें बता रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों को निकालने की कोशिश की जाए, उनको रिलीफ फराम की देने के लिए कोशिश की जाए, तो ये तमाम जो लोगों के नाम लेके गया मैं, ये सिर्फ वहां पे फोटो सेक्शन के लिए गए थे? यार आपका इतना शोर हो रहा है कि आपका आवाज समझ नहीं आ रहा है। मैं जान साहब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये तमाम जो रहनुमा हैं जिनके मैंने नाम लिए, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, क्या ये महज फोटो सेक्शन के लिए सिंध का दौरा किया इन्होंने? देखिए, इस वक्त जो भी आया है किसी भी और पार्टी की तरफ से इमदाद, मेरे ख्याल से हमने हमारी सांगल में जहाँ इमरान खान साहब की तरफ से देखी है, किसी की तरफ से कोई इमदादी काम हमारी डिस्ट्रिक्ट में मुझे चलता हुआ नजर नहीं आया है। हमारे जो इलेक्टेड माइंडेड या यहाँ के कुछ जो शायद ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर रहे हैं, और उसके अलावा हुकूमत ने हमें कहा है कि राशन की भेज रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमें अब तक कोई राशन वगैरह नहीं जी। समय कुछ तो आटे में नमक के बराबर पहुंचे थे, ताकि हम लोग अपनी जाति
طور پہ اور کیا کہ کچھ دوستوں نے کے طور پہ ہمیں راشد بھجوائے یا فرینڈس بھجوائے جی۔ جو ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے، قائم علی صاحب سے یا دوسری سیاسی میں ہمارے کراچی کے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان